सपोज उन्होंने 5 कैटेगरी डिसाइड किया है, मे बी पर कैटेगरी 2 स्कीम में डाल सकते हैं. सो 8 to 10 schemes is more than enough. आप देखेंगे एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, all companies are mid cap, not even one company is a large cap. You take a wealth management industry, not even one company is there in the large cap on the wealth management side. You take exchanges, you take a commodity exchange, you take a equity exchange on the listed side. I mean, not one company is a large cap. You take auto ancillary as a sector. Large cap auto ancillary, there's not even one large cap auto ancillary company. All are small cap, mid cap. Namrata, the typical signs when you see everyone talking about small cap, mid cap, that is a usual sign. Panwala and everyone, those things are known. Okay. One is that. Secondly, I think if you look at small mid cap, suppose small and mid cap 50% ऊपर है, but earning growth 15% ही है. So that there's been a lot of re-rating in that price movement. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. और आज हमारे इस एपिसोड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव विद अस मिस्टर आदित्य खिमानी, हु इज द फंड मैनेजर एट इन्वेस्को म्यूचुअल फंड. मिस्टर आदित्य हैज ओवर 19 years of experience in the equities market and currently works with Invesco as fund manager equity with effect from 1st November 2023. In his last assignment before joining Invesco, Aditya was working with Motilal Oswal Asset Management India Company Limited as fund manager, where he was responsible for managing equity funds at the firm. In the past, he has also worked with companies like HSBC Asset Management India Private Limited, SBI Funds Management Limited, and Morgan Stanley Advantage Services. Mr. Aditya holds a bachelor's in commerce from St. Xavier's College, Kolkata University, and a PGDM degree from Indian Institute of Management, Lucknow. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us this week again. And आज हम for the very first time we have with us Mr. Aditya Khimani, who's a fund manager with the Invesco AMC. And I think ये हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं. So Aditya, welcome to Mutual Fund की बात. And thank you so much for joining us today. Yeah, thank you so much, Namrata, for inviting me to the show. Most welcome. We're very excited to have you. And आज जब हम आपके लिए questions decide कर रहे थे ना, as a team we all sit down and we decide कि हम क्या theme, क्या questions decide करेंगे for every speaker. So we realized कि एक जो theme है जो शायद हमने बहुत पहले किया था, या शायद हमने कभी उतना टच अप किया नहीं है इस थीम के ऊपर, तो हमने सोचा कि आज लार्ज एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करते हैं. एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स एज अ कैटेगरी, राइट? क्योंकि ये जो है फंड्स दे गिव यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें, उसमें आपको मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों का एक्सपोजर मिल रहा है. सो वी गोना बी डिस्कसिंग दिस कैटेगरी इन मोर डिटेल. एंड आई डू होप कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले फ्रॉम ऑल योर विजडम. थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग इन. So let's get started. And I think Aditya, क्योंकि आप हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं, let me ask you a little personal question. तो क्योंकि ये शो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए है, तो आप हमें ये बताइए कि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी रहा है इन द लास्ट से 16-20 years, वो कैसा रहा है, एंड हाउ हैव यू नेविगेटेड डिफरेंट मार्केट कंडीशंस? Look, Namrata, मैं मार्केट में 2005 में आया, एंड 2005 से ही म्यूचुअल फंड में आई स्टार्टेड माई करियर. सो लास्ट 20 years आई बीन कम्प्लीटली म्यूचुअल फंड में. एंड म्यूचुअल फंड, it's very difficult to do personal investment along with managing funds actually. So like 2009 onwards मैं fund manager हूँ. तो last 16 साल में it has been very difficult to do personal investment because there's a conflict. अगर आप खुद का investment कर रहे हो तो fund में क्या ले रहे हो, there's always a big conflict there. So generally as a style मैंने जितना भी अपना savings है, I've tried to put into the funds only. And most of that into the funds I manage. Okay. Because I've been managing categories जो कि multi cap, flexi cap kind of categories है, and those are very good categories. So in case मुझे अपना खुद का पैसा डालना है and it is coincidental that over a year at Invesco मैं small cap, mid cap and large and mid cap manage करता हूँ. And in my view, I think these are three of the categories which hold the maximum profits for long term investors. Okay. So now
most of the money I put into my own funds only, Namrata. Okay, okay. So let me start off by asking you a very simple question. मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर्स निवेशक ये पूछते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, राइट? क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इतने सारे फंड्स हैं विद इन ईच कैटेगरी। तो प्लीज़ हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि अगर मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उसमें आइडियली कितने फंड्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम, एंड व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी? लुक नम्रता, ये क्वेश्चन एक फंड मैनेजर की तरह है। फंड मैनेजर कितने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लेंगे, तो इसका कुछ सही या रॉन्ग आंसर नहीं है। कुछ फंड मैनेजर्स 20-25 स्टॉक लेते हैं, कुछ फंड मैनेजर 200 स्टॉक लेते हैं। जी। सो सिमिलरली फॉर अ इन्वेस्टर, हाउ मेनी म्यूचुअल फंड्स ही वांट टू हैव इन हिज पोर्टफोलियो, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कॉल। सो टुडे अगर हम देखेंगे, आई थिंक 350-400 म्यूचुअल फंड है अक्रॉस स्कीम्स है अक्रॉस द मार्केट। जी। सो आई थिंक अगर आप ज़्यादा स्कीम लोगे अपने पोर्टफोलियो में, विच मीन्स डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है तो आउटकम आपका क्लोजर टू इंडेक्स आता है। दैट्स वाई हैविंग लार्ज म्यूचुअल फंड इन योर पोर्टफोलियो विल ऑलवेज गिव यू एन आउटकम विच इज़ वेरी क्लोजर टू द इंडेक्स। सो आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन कि आपको बहुत सारे स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फर्स्टली आप अपने रिस्क एपेटाइट को लेके, एज को लेके, कितने साल आपको पैसा नहीं चाहिए, वो सब देख के आपको डिसाइड करना है आपका एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको इक्विटी में देखना पड़ेगा। 10-12 कैटेगरीज है। सो आपको रिस्क एपेटाइट के बेसिस में आपको मिड कैप कितना डालना है, स्मॉल कैप कितना डालना है, लार्ज एंड मिड कितना डालना है। एंड आई थिंक मैक्सिमम फॉर अ इन्वेस्टर 8 to 10 स्कीम्स नहीं होने चाहिए। अगर सपोज़ उन्होंने 5 कैटेगरी डिसाइड किया है, मे बी पर कैटेगरी 2 स्कीम में डाल सकते हैं। सो 8 to 10 schemes is more than enough, because what happens for a fund manager, अगर आप अलग अलग स्कीम में डाल रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन करा हुआ है स्कीम में। एंड टिपिकली वन फंड इज़ नॉट वेरी डिफरेंट दैन अदर फंड। अगर आप मिड कैप फंड का एग्जांपल लेंगे, 65% एलोकेशन वो 150 नाम में होना पड़ता है मिड कैप कंपनीज़ में। सो यू विल सी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है वन पोर्टफोलियो वर्सेस द अदर। सो आई मीन द मोर पोर्टफोलियोज यू मैनेज, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट पोर्टफोलियो। सो कीप इट सिंपल। 3-4 कैटेगरी आप आइडेंटिफाई करो अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, देन यू पुट इन मे बी 2 फंड्स पर कैटेगरी। सो मे बी टोटल 8 to 10 funds per on an aggregate basis is more than sufficient to give you the desired outcome. ओके, वंडरफुल। या आपके ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया तो आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि शायद आपको उसका बेनिफिट नहीं मिले। एंड लाइक यू राइटली सेड कि आपके रिटर्न इंडेक्स से बहुत क्लोज हो जाएंगे, विच इससे अच्छा फिर आप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए अगर इतना ही ओवर Yes. डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मिड एंड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी। एंड क्योंकि आज हम मेरे ज़्यादातर सवाल इसी कैटेगरी के अराउंड आपके लिए होने वाले हैं, सबसे पहले आप हमें मिड एंड स्मॉल कैप फंड एज अ कैटेगरी के बारे में ही समझा दीजिए फॉर आवर व्यूअर्स कि ये होता क्या है? सर पहले तो नम्रता मिड कैप फंड लेते हैं। मिड कैप कैटेगरी वो फंड होते हैं जिसमें मिनिमम 65% एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में होना पड़ता है। बैलेंस 35% आप स्मॉल में भी कर सकते हो, लार्ज में भी कर सकते हो। इट इज़ अपॉन द फंड मैनेजर। एंड विच आर द कंपनीज विच आर कॉल्ड मिड कैप्स। तो अगर आप इंडियन मार्केट को ब्रेकअप करोगे, सो टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप आर कॉल्ड लार्ज कैप कंपनीज। जी। 101st to 250th company are called mid cap companies. So mid cap comprises a list of 150 companies. जी। तो 65% एक्सपोजर आपको ये 150 कंपनी में करना पड़ेगा। बैलेंस 35% इज़ अपॉन द फंड मैनेजर, उन्हें उसे कहाँ करना है, स्मॉल मिड या लार्ज में करना है। सो दैट इज़ मिड कैप। बट अगर हम स्मॉल कैप लेते हैं, जैसा कि कैटेगरी स्मॉल कैप है, सिमिलरली दैट 65% रूल अप्लाइज एंड 65% इन्वेस्टमेंट आपको स्मॉल कैप में करना पड़ेगा। एंड विच आर स्मॉल कैप कंपनीज, जैसा मैंने बोला 101 से 250 इज़ मिड कैप, बियॉन्ड 250 इज़ स्मॉल कैप कंपनीज। सो 250 के बाद 400 नंबर, 500 नंबर, 600 नंबर, ऑल आर स्मॉल कैप कंपनीज। सो इट 65% इनटू हैज़ टू बी इन दोज 250 बियॉन्ड 250th कंपनी। सो ये एक डेफिनेशन है स्मॉल कैप और मिड कैप का। ओके, ओके। लेकिन नम्रता यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। जनरली इन्वेस्टर्स स्मॉल और मिड कैप सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत रिस्की कैटेगरी है। आई डोंट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट, क्योंकि जैसा मैंने कहा मिड कैप इज़ 101 to 250th कंपनी। सो सबसे बड़ा मिड कैप कंपनी 101
कंपनी है मार्केट कैप, उसका मार्केट कैप देखोगे ब्रॉडली 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का, 2500 करोड़ का प्रॉफिट है. सो हाउ कैन यू कॉल अ 1 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी 2500 करोड़ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या मिड कैप? सो दैट्स वाई आई थिंक मिड कैप को आप स्मॉलर लार्ज कैप्स की तरह देखना चाहिए. सो द रिस्क in a mid cap is much lesser than what it has been maybe 10 years 15 years back. So that's why small mid today is not as risky as what people think. Only thing is जैसा small cap मैंने बोला, small cap is up till 30,000 crore market cap. Okay. तो इसमें maybe less than 5,000 6,000 7,000 crore would be riskier, but beyond 8-10,000 crore market cap companies will be less risky as compared to what people perceive it. आदित्य, जब हम मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है वो ये है कि जो सेक्टर्स होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हमें एक्सपोजर मिल सकता है इन मिड एंड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, क्योंकि अगर हम लार्ज कैप्स देखें तो लार्ज कैप्स में यू विल हैव लॉट ऑफ कॉमन सेक्टर्स, जैसे यू विल हैव आईटी या फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सो ऑन. तो आप हमें ये बताइए कि जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनमें कौन-कौन से सेक्टर्स इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं जिसका एक्सपोज़र एक इन्वेस्टर को मिल सकता है, एंड हाउ डज़ इट हेल्प द इन्वेस्टर? नम्रता, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई लाइक द स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी सो मच. तो अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप, हम किस तरह के स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं? एक तो आप उन कंपनी को देखिए जो कि लार्जेस्ट कंपनी वो सेक्टर का स्मॉल एंड मिड कैप है. सो लार्ज कैप में आप एक्सपोजर नहीं ले सकोगे. सेकेंडली, बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप हैज़ अ बिगर राइट टू विन. सो दैट्स वाई यू प्ले थ्रू स्मॉल एंड मिड कैप. थर्डली, मे बी लॉट ऑफ इमर्जिंग सेक्टर्स आर देयर. आप इमर्जिंग सेक्टर है तो मार्केट कैप छोटा रहेगा, तो जनरली दे विल फिट इन टू द स्मॉल कैप मिड कैप. आपके पास कोई लार्ज कैप ही नहीं रहेगा वहाँ पे. सो यू प्ले थ्रू स्मॉल एंड मिड कैप. अगर मुझे एग्जाम्पल देना पड़े, लेट मी टेक मे बी सम सेक्टर, लेट्स टेक सेक्टर लाइक हॉस्पिटल्स. अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर देखोगे, till 2-3 months back there was not even one large cap hospital companies, all were small cap and mid cap. Only in this SEBI review 2 companies have become large cap from mid cap, which is Apollo Hospital and Max Healthcare. So which means अगर आपको हॉस्पिटल खेलना था तो स्मॉल मिड कैप के थ्रू खेलना पड़ता. सेकेंडली, अगर हम एक इमर्जिंग सेक्टर ले, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसको कि EMS बोलते हैं. अगर अगेन इन EMS today not even one company is a large cap company, all because this is an emerging sector, so companies have not become very big. So that's why all companies are small and mid cap. So आपको EMS खेलना तो स्मॉल मिड कैप के थ्रू खेलना पड़ेगा. अगेन यू टेक वन मोर इमर्जिंग सेक्टर विच इज़ अ CDMO सेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है. ये एक फार्मा सेक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. तो अगेन ये एक सनराइज सेक्टर है आज के दिन. आज के दिन भी इसमें खाली एक ही कंपनी है जो कि लार्ज कैप है, बाकी सब कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप है. सो all these sectors you have to play through small and mid cap. Again, if you, I can take sector by sector. Again, आप फिनेंशियलाइजेशन का बात करते हैं. फिनेंशियलाइजेशन में कौन से सेक्टर्स आते हैं? एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. आप देखेंगे एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ऑल कंपनीज आर मिड कैप, नॉट इवन वन कंपनी इज़ अ लार्ज कैप. यू टेक अ वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, not even one company is there in the large cap on the wealth management side. You take exchanges, you take a commodity exchange, you take a equity exchange on the listed side. I mean, not one company is a large cap. You take auto ancillary as a sector. Again, large cap auto ancillary, there's not even one large cap auto ancillary companies, all are small cap, mid cap. So that's why the investment universe of a small cap and mid cap is very, very diverse. It gives you a representation of the entire economy. Large cap is thoda, I mean, you don't get part, you get, when you talk of large caps, maybe banks is a sector which is very big in large caps. Large cap IT is very big over there, but in these smaller sectors you don't get a play in the small and in the large cap. And again, only thing like, अब जैसे मैंने आपको बोला, you have to choose those sectors where the small and mid cap companies have a right to win against large cap. तो अगर हम एक सेक्टर बैंकिंग लेते हैं, बैंकिंग में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज डोंट हैव अ राइट टू विन अगेंस्ट लार्ज कैप कंपनी. बिकॉज बैंक में क्या किए होता है, बैंक में किए होता है आपका डिपॉजिट फ्रेंचाइज, ट्रस्ट. Because large cap banks have better
ट्रस्ट एंड डिपॉजिट फ्रेंचाइज मिड कैप स्मॉल कैप से, तो ये एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी के. सेकेंडली टेक्नोलॉजी स्पेंड हम देखेंगे, बैंक स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन टेक्नोलॉजी. छोटा बैंक उतना स्पेंड नहीं कर सकेगा जितना कि एक बड़ा बैंक कर सकता है. सो दैट्स वाई एक स्मॉल मिड कैप बैंक इज़ हैंडीकैप्ड अगेंस्ट लार्ज कैप बैंक. इसीलिए स्मॉल एंड मिड कैप में हम बैंकिंग इतना नहीं प्ले करना चाहते हैं. वी वांट टू प्ले द सेक्टर्स आई मेंशन्ड जहाँ पे यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस ऑन द लार्ज कैप साइड. सो दीज आर द टिपिकल सेक्टर्स वी ट्राई टू प्ले हमारे स्मॉल एंड, नॉट जस्ट मी, आई मीन यू विल सी द कैटेगरी मोस्ट इन्वेस्टर्स, मोस्ट फंड मैनेजर विल बी प्लेइंग इन दीज सेक्टर्स. बट डू यू थिंक आदित्य जी कि इसी वजह से शायद रिस्क भी बढ़ जाता है मिड और स्मॉल कैप्स में, क्योंकि इमर्जिंग कंपनीज हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, तो शायद ये आगे जाके परफॉर्म ना करें, क्योंकि लार्ज कैप्स में तो हम स्टेबिलिटी देख ही रहे हैं. वी आर सीइंग कि अगर बड़े बैंक्स हैं, बड़ी आईटी कंपनीज हैं, तो उनमें स्टेबिलिटी होती है. लेकिन अगर ये न्यू एज इमर्जिंग कंपनीज हैं तो शायद रिस्क भी ज़्यादा इसीलिए होता है. आई मीन डू यू थिंक इट्स अ डबल एज सोर्ड? या लुक नम्रता, व्हेन यू टॉक ऑफ रिस्क, हम अगर एक टाइम हराइजन लेते हैं, अगर हम 3 महीने 6 महीने 1 साल का लेते हैं, सो रिस्क इज़ जनरली हायर. बट द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग 3 years 5 years 10 years, risk automatically come down actually. So mid cap and small cap is all about growth actually. आपको अगर खाली स्टेबिलिटी चाहिए तो यू गो ऑन लार्ज कैप, बट देन रिटर्न पोटेंशियल स्मॉल एंड मिड कैप में इज़ मच हायर देन अ लार्ज कैप. एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट नम्रता स्मॉल कैप मिड कैप होने के कारण रिस्क नहीं आता है. अगेन मैं एक सेम एग्जांपल दूंगा. इट डिपेंड्स ऑन आपकी बिजनेस मॉडल क्या है. अगर एक लार्ज कैप स्टील कंपनी है, ओके, ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ स्मॉल कैप हॉस्पिटल स्टॉक, so you can know that a hospital business model is much more stable. तो वो एक स्टेबल कंपनी है इवन दो एक स्मॉल कैप कंपनी है. बट मेटल कंपनी, यू नो, इट इज़ डिपेंडेंट चाइना में मेटल प्राइस क्या हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ, सो इट इज़ मच मोर वोलेटाइल एंड रिस्की. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ small cap hospital will be less risky than a large cap metal stock. That's why I think small and mid cap, look, short term risk from a stock price is higher. Okay, because क्या होता है, liquidity in a small mid cap is lesser than a large cap. So when we have things like COVID के पहले जब 18-19 में द मार्केट मेल्टडाउन हैपन, तो वहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा करेक्ट होती है. बट अगर लॉन्गर टर्म लेते हैं हम, तो यू विल सी लास्ट 10 year द स्मॉल कैप, अगर हम इंडेक्स को ही देखते हैं, फंड हटा देते हैं, I think last 10 year Nifty has given I think 11-12% return annualized CAGR. Small cap, mid cap I think has given a 14-15% CAGR, and small cap is also around that number. So longer term में that risk is taken care of. But अगर कोई investor आ रहा है अगले 6 महीने में उसे पैसा बनाना है, so obviously risk है. But अगर 5 साल में उसको अगले 5 साल उसको पैसा डाल के नहीं निकालना है, I think then risk is taken care of. And also Namrata, like mutual funds, I mean, people like us are professional fund managers. We've been in the market for 20-25 years. We do a lot of research. We have a good team of analysts and everything. So a lot of times those risks are taken care of. Versus अगर आप खुद invest करने जाओगे, I agree that small cap, mid cap is much more risky than when you invest in a small and mid cap fund. Okay, fair. So you know आदित्य जी, I think हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है कि मुझे लाइफ में एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए और उस कंपनी की वजह से मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न्स ऐसे डबल ट्रिपल डिजिट हो जाए, राइट? एंड आई थिंक हर फंड मैनेजर का भी यही सपना होता है कि हमें भी एक कोई अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल जाएं, राइट? सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मिड और स्मॉल कैप फंड्स में आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कंपनी जो है मल्टी बैगर होने वाली है? Look, Namrata, again, what is a multi-bagger? I mean, कोई भी स्टॉक जो डबल हो जाता है या 4 गुना 6 गुना 10 गुना होता है उसको मल्टी-बैगर बोलते हैं. अच्छा. ठीक है. आप कोई भी अच्छे इन्वेस्टर से पूछोगे ना कि इन्वेस्टमेंट के टाइम उनको पता था ये मल्टी-बैगर होने वाला है, द आंसर इज़ नो. वी ऑलवेज नो इन हाइंडसाइट कि हाँ ये मल्टी-बैगर हो गया है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एज सिंपल टू आइडेंटिफाई मल्टी-बैगर्स एज द वे पीपल make out to be. So that's why, and multi-baggers give you the thrill of investing. हमेशा जैसे आपने बोला सपना होता है. I mean frankly in my investment style I don't chase multi-baggers because multi-baggers होता है तो multi-bagger भी हो जाता है, वो ज़ीरो भी होने का चांस रहता है अगर आप multi-bagger होता है तो. So that's why in my style
अगर हम I'll take रामदेव जी as talking very I mean so much on this. अगर आपको 10 साल में 10 गुना पैसा करना है तो 10 साल में 10 गुना इज़ अ मल्टी बैगर, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू जस्ट नीड अ 25% कंपाउंडिंग फॉर 10 ईयर्स. जी बिकॉज जब आप 25% कंपाउंडिंग करते हैं 3 साल में डबल होता है. 25% कंपाउंडिंग में 3 साल में डबल होता है. जी तो थर्ड ईयर डबल होता है, सिक्स्थ ईयर 4 गुना होता है, 9th ईयर 8 गुना होता है, 10वां साल 10 गुना हो जाता है. सो आई मीन 15% कैगर भी हम लेते हैं. 15% कैगर में भी आपका पैसा 4 गुना हो जाता है 10 साल में. सो आई थिंक so 4x to 10x is what you can make in a longer term of 10 years in case you keep your head down. अगर आपको 15 से 20-25% कंपाउंडिंग स्टोरी मिल जाता है. दैट्स वाई फॉर मी आई डोंट थिंक अबाउट मल्टीपैगर्स. मुझे उन आई जस्ट कीप गुड मैनेजमेंट, गुड बिजनेस एंड एवरीथिंग, एंड देन कीप एन आई ऑन अगला 1-2-3 साल वो 20-25% अर्निंग ग्रोथ कर सकता है कि नहीं कर सकता है. एंड देन यू कीप ट्रैकिंग, मीटिंग, अंडरस्टैंडिंग कि वो कहीं भी आपका थॉट प्रोसेस गलत तो नहीं हो रहा है. सो यू ट्रैवल दैट 15-20-25% कंपाउंडिंग जर्नी एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम मल्टी बैगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज क्या होता है, एक मल्टी बैगर के पीछे 10 स्टॉक फेल भी होते Fail भी हैं. होते हैं. सो people don't talk about the losers actually. So that's why I mean my belief is, and especially in when you manage public money, जब आप public money manage करते हैं, it is a duty, it's a hard earned money of people actually. So you should not, I mean I'm not saying that you should not find multi baggers, but I think you should keep your head down and keep focus on companies जहाँ की 15-20-25% एनुअलाइज रिटर्न आपको दे सकती है लॉन्गर टर्म में. एंड आई थिंक इन केस यू डू दैट योर वर्क विल बी डन. सो नाउ अगर आप फंड देखोगे, बहुत सारे फंड लास्ट 10 साल में स्टैटिस्टिक्स का कि इतना पैसे आपने डाले होते तो इतना हो जाता. बट इफ़ यू लुक एट द रिटर्न वुड हैव बीन 19-20% कैगर. सो लॉन्गर टर्म में अगर आप 19-20% कैगर बनाते हो ना, I mean that is more than enough actually, and that is not possible. 19-20 is not easy, but I think multi bagger नहीं, आपको 15% रिटर्न स्टॉक लॉन्गर टाइम फ्रेम में मिल जाता है. that will give you a multi bagger. okay sure. All right, so Aditya, Invesco का जो mid या small cap funds हैं, they've done pretty well in the in the past few years. तो आप ये बताइए कि at Invesco आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये परफॉर्मेंस दिख रही है? Look, Namrata, again it is very difficult to say क्या अलग कर रहे हैं. I will say what we are doing, because we don't know what others are doing and how are we different. Okay. So I think investing is a very, if you keep it simple, it will be a simple journey. If you make it complicated, it will get complicated. So at our place, Invesco is a very bottoms up house. हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं मैक्रो में एक वॉर छिड़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो 3 महीने का कॉल लेते हैं, 6 महीने का कॉल लेते हैं. वी डोंट थिंक अबाउट दैट. Entire energy of the entire team is focused on meeting companies, identifying the right set of companies, identifying the right set of promoters, and so you construct a portfolio of 45-50 good companies, and over time that will do well. So that is one bottom up conviction process है. तो हम सब कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. So we have a universe actually. So as a house, we just have a universe of 300 companies. We don't have a universe of 500-600 companies, which a lot of people have. So on a 300 stock universe also, we've been able to give return जो कि सब funds में आया है. So it's one, high conviction, lot of work on companies. Secondly, I will say, I mean we don't worry about next 2 months, next 3 months, next 6 months. I mean our thought process है ये 2-3 साल में अच्छा पैसा बना के देगा कि नहीं देगा. That is how we think about. Thirdly, I mean look again, a lot of people want to see relative basis में, ये स्टॉक relatively अच्छा करेगा, उससे अच्छा करेगा. I mean our focus is much more absolute, because when an investor is putting money, he is trying to get absolute return. उसको रिटर्न से मतलब नहीं है, उसको relative return से मतलब नहीं है, वो तो हम देखते हैं अपना इवेल्युएशन में. सो वी आर वेरी फोकस ऑन एब्सोल्यूट रिटर्न. सो कोई कंपनी अगर 3 साल में 15% कैगर आपको बना सकती है, so I think that is the starting point. We go ahead with that company. So these are 3-4 things in terms of, and obviously discipline is very very important, because discipline, because again what is a fund manager edge nowadays? कोई information आपके पास edge नहीं है. So that discipline in terms of buying at the right price, selling at the right price, I think that also adds on to the entire thing. So it's not, so एक चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ, it's a combination of everything. But what I can say for sure is, I mean
at Invesco, the team is very passionate and very committed actually. So I mean, most people are actually traveling on Saturdays. I mean, going to a plant, this, that, and also when you, because we want to make it big, and Invesco as a house is not that big when you compare to other house. So that passion is there. I think, I mean, for me, maybe when I look at a company, I've said in the past, promoter passion is very, very important. I mean, because you need to have that fire in the belly. Just like that, I mean, we as a house have a lot of fire in the belly. I think that is one differentiator, I would say. And apart from that, everything has luckily worked in our favor. ओके सो आदित्य जी, पिछले 2 सवालों का जो आपने जवाब दिया उसमें आपने 15% को यूज़ किया है एक्सटेंसिवली, सेइंग कि अगर 15% रिटर्न मिल रहा है स्टॉक तो चलेगा, 15% मिल रहा है तो मल्टी बैगर हो, उसको हम मान सकते हैं, एक्सेट्रा, राइट? सो टेल अस कि एज एन इन्वेस्टर, क्या अगर मेरे मिड या स्मॉल कैप फंड्स मुझे 15% दे रहे हैं एज अ रिटर्न, इज दैट गुड इनफ फॉर मी? लुक अगेन नम्रता, अगर हम, व्हाट हैपेंस, इन्वेस्टर की मेमोरी बहुत छोटी रहती है, एंड 2020 to 2024 पीरियड वाज सच कि पीपल वांटेड 15% रिटर्न महीने भर में. आई मीन एवरीथिंग वाज इन अ फ्रेंजी, जी, स्टॉक्स वर लाइक हाँ, डबलिंग एवरी ईयर. हाँ, सो उसके कारण मेरे को लगता है पीपल्स habit has got spoiled. Not just people, I mean our fund managers habit has also got spoiled. So that's why वो आज पॉसिबल नहीं है. वो 2020 से 24 इकोनॉमिक साइकिल वॉज डिफरेंट. कंपनी एक छोटे बेस से आ रही थी, मार्जिन उनका कम था, मार्जिन बढ़ रहा था, केपेक्स साइकिल, केपेक्स बहुत हो रही थी. सो एवरीथिंग वॉज गोल्डीलॉक पीरियड था. एंड दैट्स वाई लास्ट 1.5 साल में आई थिंक बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि आई मीन व्हाट दे थॉट इज़ नॉट टर्निंग आउट. सो दैट्स वाई, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस रिटर्न एक अर्निंग ग्रोथ से लिंक्ड है. आपका जो अर्निंग ग्रोथ है, इट विल मूव इन लाइन विद दैट. सो अगर आप अभी देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी 9-10% से ग्रोथ कर रही है. सो माई व्यू इज दैट लार्ज कैप कंपनीज विल नॉट बी एबल टू ग्रो 10-11% से ज़्यादा. वो लार्ज उनके संग ही ग्रो करेगी. एंड मिड एंड स्मॉल कैप 13-14% से ग्रो कर सकती है क्योंकि वो छोटे हैं. सो दैट्स वाई आई हैव ऑलवेज सेड, आई मीन एक्सपेक्टेशन आप 12-13-14% का रखिए, एंड इन केस सम फंड मैनेजर इज एबल टू डू वेल, आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है. बट देन आई थिंक एक्सपेक्टेशन आपका 13-14-15% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट नम्रता. मैंने व्हेन आई सेड 15%, दैट डज नॉट मीन कि आप 25% वाला स्टॉक मत चेज करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको स्टार्ट पे नहीं पता रहता है. आपको एक पोर्टफोलियो ऐसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि कुछ कंपनीज 15% दे सकती है, कुछ कंपनी 20 दे सकती है, कुछ कंपनी 25 दे सकती है. बट स्टार्टिंग पॉइंट एक जो फ्लोर होता है 15% इज मिनिमम, अर्निंग ग्रोथ इज मिनिमम एक्चुअली. सो आई थिंक अगर आप वो करोगे 18-20% रिटर्न बन सकता है. बट बनेगा कि नहीं बनेगा, मे बी टाइम विल टेल. बट आई थिंक इन्वेस्टर को अपना जो भी कैलकुलेशन करना है कि मुझे कितने पैसे फंड्स में डालने हैं, 10 साल के बाद उनको कितना मिलेगा पैसा, सो दैट दे कैन, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल नीड मनी लेटर. सो आई थिंक 13-14% ज़्यादा नहीं उनको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए. एंड नम्रता, वन मोर थिंग, अगेन एज आई सेड, पीपल हैव गॉट स्पॉइल्ड. हमें एक चीज़ वापस देखना पड़ेगा कि मे बी 5-6-7 साल पहले हमारा इन्फ्लेशन 6-7% पे चलता था. सो तो रिटर्न, बिकॉज रिटर्न्स उसके कारण ज़्यादा होती है, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इज लिंक टू नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी पे इन्फ्लेशन आता है. तो उस समय जो 15% अर्निंग ग्रोथ आता था, आज के दिन 12-13% आपको सेम काम करके देगा, बिकॉज इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन टू 3-4%. सो परचेजिंग पावर पैरिटी में वही काम आपका 13% से हो जाएगा जो पहले आपको 15-16% चाहिए होता. सो दैट्स वाई पीपल शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड कि अरे 12-13% ही रिटर्न बनेगा. मैंने आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ. एंड इन केस यू मेक, एज आई सेड, 15% रिटर्न अगले 10 साल में, योर मनी विल बिकम 4x ऑन एन एग्रीगेट. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा एक्सपेक्टेशन 13-14% होना चाहिए, तो उतना तो मुझे इंडेक्स भी दे रहा है, राइट? इन द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स ने, लाइक यू हैड सेड, इतना अप्रॉक्सीमेटली दिया होगा. सो टेल मी कि एक एक्टिवली मैनेज्ड मिड या स्मॉल कैप फंड में मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वर्सेस अ पैसिवली मैनेज्ड फंड? क्योंकि अगर रिटर्न्स में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, देन व्हाई शुड आई टेक दैट एक्स्ट्रा रिस्क of investing in an actively managed mid or small cap fund? Look, नम्रता, ये एक डिबेट है जो कि एक्टिव वर्सेस पैसिव, दैट इज़ अ वेरी कंटिन्यूस डिबेट. बट व्हाट आई विल टेल यू ऑनेस्टली इज़, अगर हम लास्ट 10 साल 15 साल का जर्नी देखते हैं, ओके, टुडे जैसा मैंने बोला, मिड कैप कंपनीज बड़ी हो गई है. 30,000 से 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है. सो दे आर बिग कंपनीज एक्चुअली. सो जब कंपनी बड़ी होती है, यू आर सीइंग लॉट ऑफ एनालिस्ट कवर दैट.
देयर इज़ अ कम्युनिटी सेल साइड रिसर्च, बहुत सारे ब्रोकर्स है, उनके पास एनालिस्ट रहते हैं. सो आप मिड कैप कंपनीज देखोगे, मोस्ट मिड कैप कंपनीज कोई 15 एनालिस्ट कवर करते हैं, कोई 20 एनालिस्ट कवर करते हैं. सो डिस्कवरी बिकम्स मच मोर ईजी when so many analysts cover on the sell side. One is that. Secondly, आजकल आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी देखोगे, promoters are very very keen to get market cap. So they do so many con calls, they do a quarterly con call करते हैं, वो एकदम बहुत अच्छा डेक बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, they meet so many people. Again, discovery has become very easy for a small and mid cap. Thirdly, the number of investors have gone up in the market. 10 years back, 15 years back, I mean, mutual fund was a big institutional participant. But आज के दिन इतने सारे PMS हो गए, इतने सारे AIFs हो गए, इतने सारे family offices हो गए. So it is very difficult to be agile and say कि मैंने उसको पहला, I am the first one who picked that stock. So nowadays, I don't think so a mid cap or a small cap fund manager has that information edge जो कि 5 साल 10 साल पहले हुआ करता था. So that's why it is much more challenging to outperform the index today than what it was 5 years, 10 years back. But having said that, I think outperformance for an active fund manager will come out of portfolio construction. Because हम क्या जब investing का बात करते हैं ना, हम खाली stock का ही बात करते हैं. But I think too much stock is, I mean, stock picking is overrated in my view. I think it's much more about portfolio construction. तो आपने कैसे portfolio construct किया है, आपने किस सेक्टर को कितना वेटेज दिया है, आपने कौन से स्टॉक पे ज़्यादा वेटेज लिया है, आपने कैसे रिस्क मैनेज किया है, आपने कौन सा स्टॉक बहुत महंगा हो गया है नहीं रखा है पोर्टफोलियो में, आपका बिहेवियर कैसा वर्क किया है, स्टॉक नीचे आया है आपने एवरेज किया है या आपने बेच दिया. आई थिंक दोज थिंग्स हैव बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट टुडे फॉर अ स्मॉल कैप एंड अ मिड कैप फंड मैनेजर. एंड यहाँ पे I mean, everyone is learning actually. One is that. Secondly, one other thing, if you look at sectors, the traditional way of looking at investing is changing. Emerging sectors बहुत सारे आ गए हैं. अगर हम क्विक कॉमर्स लेते हैं एग्जांपल, क्विक कॉमर्स इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इंडेक्स. सो अगर एक पैसिव फंड है, वो तो जितना इंडेक्स का पार्ट है उतना ही रखेगा. बट इनकेस एक्टिव फंड मैनेजर हैज़ दैट व्यू कि क्विक कॉमर्स विल बिकम वेरी बिग आने वाले दिनों में, वो ही विल कीप अ मच हायर एलोकेशन. सो ही विल आउट परफॉर्म. दैट्स वाई इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. एंड इसमें भी कोई क्लियर आंसर नहीं है पैसिव विल विन और एक्टिव विल विन. बट आई थिंक फॉर अ एक्टिव फंड मैनेजर it is much more difficult today to outperform the small cap and mid cap index. So you have to do maybe in a much more disciplined way and maybe in a much more skillful way for you to outperform the index over a longer time frame. Okay, fair enough. So Aditya ji, आपने ना एक बार एक स्टेटमेंट बोली थी, you had said कि promoters with fire build the next large caps, right? And I'm guessing आप रेफर कर रहे हैं कि जो आज के मिड और स्मॉल कैप्स हैं वो आगे जाके लार्ज कैप्स बनने वाले हैं, right? So tell us, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट बोला था, एंड यू नो एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट दिस. नहीं, the context, there was someone asked me, how do you choose companies? Okay, so my answer was, एक होता है क्वांटिटेटिव पैरामीटर. क्वांटिटेटिव पैरामीटर में आप देखोगे क्या अर्निंग ग्रोथ है, क्या ROE है, क्या कैश फ्लो है. So that is one part of it, and that is no longer, I mean, everyone wants the same thing. हर investor वो देखता है. So I cannot say कि I have an edge over there. But then qualitative parameters become much more important. So मेरे लिए promoter has a much larger weightage. What is a promoter thinking? I mean, is he creating a second line of management? And does he have the fire in the belly? Because what happens अगर भूख ही नहीं है, because we have to remember, हम स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी ऐसे बात करते हैं कि ये बहुत छोटे लोग हैं. आई मीन दीज आर बिग गाइज. जैसे मिड कैप कंपनीज 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, अगर प्रमोटर स्टेक भी 50% है, सो दिस प्रमोटर्स आर वर्थ 30, 40, 50,000 करोड़ एंड दे आर नॉट स्मॉल पीपल. जब आपका इतना बड़ा बहुत नेटवर्क बन जाता है ना, सो मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम आप कंप्लेसेंट बन सकते हो कि मैंने बहुत पैसा लाइफ में कमा लिया, अब थोड़ा आराम करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रमोटर्स बिकम 60, 65, 70. सो देन दे थिंक अबाउट प्रिजर्वेशन रादर देन ग्रोथ एक्चुअली. सो that is a very important metric. So promoter needs to have that fire in the belly. And look, for it is very it is not a generic. I mean, कोई promoter 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पे भी he might have that fire in the belly. कोई promoter 500 करोड़ मार्केट कैप पे भी he might become very satisfied. So for us, our investing journey starts at the time we put in money. I mean,
जो पास्ट क्या हुआ है उसका कोई हमें फल नहीं मिल रहा है. So that's why having that fire in the belly is very very important. So you have to look for people, promoters who are still passionate, and those that was a context मैंने ये statement बोला था. ओके. सो यू नो आदित्य जी, बिकॉज हम ऑलरेडी इतना स्मॉल कैप्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड मिड कैप्स के बारे में, आप ये बताइए कि क्या स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन देखना चाहिए? आई मीन हमने देखा है कि अभी बहुत रिसेंटली बहुत ओवर वैल्यूएशन हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर हम स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वे इन्वेस्टिंग विद द लॉजिक कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें रिटर्न्स चाहिए, राइट? तो क्या वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होते हैं इन द स्मॉल कैप स्पेस, जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, बट इज इट इम्पॉर्टेंट इज द क्वेश्चन. लुक नम्रता, इन्वेस्टिंग इज़ अ टू डायमेंशनल. ठीक है, एक तरफ आपका अर्निंग ग्रोथ है, दूसरा तरफ वैल्यूएशन है. जी. सो आई विल से पीपल हु थिंक वैल्यूएशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक they don't know investing actually. So valuation is very very important. Only thing is, देखिए valuation is I mean it is art as well as a science, and just like people say beauty lies in the eye of the beholder, valuation is something like that only. किसी को 20 पी महंगा लगता है कोई कंपनी का, किसी को 50 पी भी सस्ता लगेगा कोई कंपनी का. So that's why lot of people सिंपलिस्टिकली क्या करते हैं, FY26 पी लिया कोई कंपनी का या FY27 पी मल्टीपल लिया कोई कंपनी का, सपोज 50 टाइम है FY27. आई मीन पीपल माइट कम अप विद दैट जजमेंट कि ये स्टॉक महंगा है. सो माई लिमिटेड पॉइंट बीइंग कि आप खाली 1-2 साल का उसका मल्टीपल देख के नहीं डिसाइड कर सकते हो स्टॉक सस्ता है कि महंगा है. एंड अगेन इफ़ यू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कोई भी कंपनी डिस्काउंटेड कैश फ्लो से मेजर वैल्यू होती है. व्हाट इज़ DCF? बिकॉज आप एक कंपनी खरीदते हो, आप 2 तरह से सोच सकते हो. आपने एक स्टॉक लिया है जो कि 6 महीने 12 महीने 2 साल में बेच दोगे, दैट इज़ वन अप्रोच. देन फॉर यू FY26 एंड FY27 पी बिकम्स इम्पॉर्टेंट. बट इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग मे बी आई एम बाइंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर एंड नेक्स्ट 10 ईयर, यू स्टार्ट थिंकिंग कि आई एम बाइंग द कंपनी. So for you, then what is the earning 5 year later, 10 year later becomes very very important. And DCF में concept होता है terminal value. Terminal जैसे सपोज हम अर्निंग लेते हैं कोई कंपनी का आज के दिन, मे बी हम अगले 3-5 साल अर्निंग को प्रिडिक्ट कर सकेंगे, बट 8-10 साल के बाद नहीं प्रिडिक्ट कर सकेंगे क्या उसका अर्निंग ग्रोथ 10 साल 15 साल बाद होगा. सो वहाँ पे हम टर्मिनल वैल्यू लगा देते हैं कि ग्रोथ उसका क्या होगा, 6% 7% लॉन्गर टर्म. सो एनी कंपनीज वैल्यू, एनी ग्रोथ कंपनीज वैल्यू टुडे 60-70% कम्स आउट ऑफ टर्मिनल वैल्यू. एंड टर्मिनल वैल्यू हमको पता नहीं है, वो एक परसेप्शन है, नरेटिव विल ड्राइव दैट. सो दैट्स वाई आई थिंक खाली हम FY26 FY27 पी नहीं देख सकते हैं, हमें लॉन्गर टर्म देखना पड़ेगा. इज़ अ प्रमोटर डूइंग द राइट थिंग्स, कंपनी एक ऐसी सेगमेंट में है जहाँ पे ग्रोथ रनवे बहुत लंबा है. सो दोज थिंग्स. एंड जनरली और स्मॉल मिड कैप में क्या होता है ना नम्रता, स्मॉल मिड कैप टुडे मार्जिन आज के दिन सपोज X है, व्हेन दे बिकम लार्जर वो मार्जिन X+2 X+3 हो जाता है. वर्किंग कैपिटल आज के दिन X डेज है, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा बिकॉज एज एंड व्हेन आप छोटे से बड़े होते हो ना, आपका मार्जिन में भी ऑप्टिमाइज होता है, आपका वर्किंग कैपिटल बेटर हो, एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है. सो एवरीथिंग कम्स इन, योर अर्निंग ग्रोथ इज मच फास्टर. दैट्स व्हाई आई मीन one way so FY26 FY27 P is also the important, but खाली उसको हम देख के स्टॉक को खरीद या बेच नहीं सकते. आपको लॉन्गर टर्म जर्नी देखना पड़ेगा कितना बड़ा हो सकता है, एंड देन टेक अ कॉल कि कोई स्टॉक सस्ता है कि कोई स्टॉक महंगा है. बिकॉज अगेन एक लाइफ साइकिल होता है कंपनी का. सपोज एक IT कंपनी है, IT कंपनी $30 बिलियन $20 बिलियन इनका रेवेन्यू है. एक IT सर्विसेज एक मेच्योर्ड बिजनेस है, तो आप मेच्योर्ड बिजनेस में आप कितना ग्रोथ कर लोगे, यू कैन नॉट ग्रो एट अ मच फास्टर रेट. अगर आपका टॉप लाइन $20-30 बिलियन है, अगेन यू आर अ बिग कंपनी विद इन दैट IT सर्विसेज, तो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है. सो विच मीन्स देन योर टर्मिनल वैल्यू विल बी लेसर. तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगले 2 साल का PE क्या है. बट कंपनीज विच आर इमर्जिंग, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बोला, ये एक स्पेस अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया का जर्नी. यू सीन चाइना, ताइवान एंड ऑल दिस कंपनी, ये जर्नी अगले 20-25 साल चलेगा. सो दैट्स वाई कंपनीज विल बिकम मच लार्जर. सो मे बी फॉर सम ऑफ दिस इमर्जिंग सेक्टर राइट वे आप खाली अगले 2-3 साल का PE देख के नहीं जस्टिफाई कर सकते हो. सो दैट्स वाई वैल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन वैल्यूशन इज़ सब्जेक्टिव, एंड वो एक इन्वेस्टर विल डिफर विद द अदर इन्वेस्टर.
ओके, ओके। तो आदित्य जी, जब हम मिड और स्मॉल कैप्स की बात करते हैं, एज़ पर डेफिनिशन 65% इन ईच ऑफ दीज़ कैटेगरीज़ होना चाहिए, जैसे आपने इनिशियली एक्सप्लेन किया था। बाकी 35% जो है कुड बी इन एनी अदर कैटेगरी। मिड कैप का जो है, मिड कैप फंड्स में बाकी 35% कैन बी इन लार्ज कैप्स या स्मॉल कैप्स और व्हाटएवर, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, क्या इनको रियली ट्रू टू लेबल होना चाहिए? व्हिच मीन्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें अगर मान लीजिए मिड कैप फंड है तो उसमें 80-90% मिड कैप्स में है, या सेम गोज़ विद स्मॉल कैप फंड्स, या फिर उनको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए टू ब्रिंग इन सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी इनटू द पोर्टफोलियो, आपको क्या लगता है? नम्रता, अगेन द कैटेगरी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये हमारा क्रिएशन है कि पहला 100 कंपनी लार्ज कैप है. सो एसेंशियली व्हेन समवन इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप फंड, उसे क्या चाहिए? व्हाट इज़ द एसेंस? ही इज़ लुकिंग फॉर हाई हाई ग्रोथ, ग्रोथ। हाई अर्निंग ग्रोथ. सो आई थिंक दैट शुड बी द कोर. ओके। उसके बाद सो एनी मिड कैप पोर्टफोलियो, कोर शुड बी ग्रोथ. हुँ, हुँ। स्मॉल कैप, कोर शुड बी ग्रोथ. उसके बाद आप कैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आई थिंक दैट आई एम अ फर्म बिलीवर. अगर आप मिड कैप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, आप अक्रॉस क्रिएट करो. आप 65% मिड कैप में रखो, बाकी 35% यू सी वेयर द अपॉर्चुनिटी. आप स्मॉल कैप में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको लार्ज कैप में मिल रहा है, आपको मिड कैप मिल रहा है, अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट. बिकॉज इट इज़ लॉजिकल. अगर आपको कोई भी एक छोटे से यूनिवर्स में पूरा पोर्टफोलियो बनाना पड़ रहा है, यू विल बी कंस्ट्रेंड. बट अगर आप थोड़ा वाइड कर दोगे अपना यूनिवर्स, यू विल पिक एंड चूज़ कि ये चलो स्मॉल कैप में ये बहुत अच्छा है, इसको रखते हैं, लार्ज कैप में बहुत अच्छा है, इसको रखते हैं. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. सो आई थिंक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो आप जब तीनों लेके आओगे जब ही बनेगा. कीपिंग दैट 65% मिड कैप ओवर ईयर. सो हमारे मिड कैप में वी हैव 15% large cap, 65% is mid cap, 20 is small cap, so 85% is small and mid cap, and then 50% is large cap. But we are not buying the largest bank of the country, the largest oil and gas of the company of the country in that 15%. हम वो लार्ज कैप खेल रहे हैं, हम एक एपरल रिटेलर खेल रहे हैं जो कि हाई ग्रोथ है, हमें हॉस्पिटल खेल रहे हैं जो कि 20% ग्रोथ, जी। अर्निंग ग्रोथ दे रहा है, हम एक क्विक कॉमर्स कंपनी खेल रहे हैं जो कि 100% प्लस ग्रोथ कर रहा है. सो एसेंशियली वी आर प्लेइंग एविएशन प्ले. अगर सपोज आई लाइक अ थीम लाइक एविएशन, आपको पता है एविएशन में देयर इज़ ओनली वन क्रेडिबल कंपनी जो कि लार्ज कैप कंपनी है. जी। आई कैन नॉट से टू माई स्मॉल कैप इन्वेस्टर कि मुझे एविएशन अच्छा लगता है लेकिन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ एविएशन स्टॉक, बिकॉज ये एक स्मॉल कैप फंड है. हाउ टू मैनेज दैट स्मॉल, मिड एंड लार्ज इज़ माई हेडेक. I will meet that 65% small cap in small cap and 65% mid cap in mid cap, and then create an optimum portfolio across the market cap and across the sector, because risk management also becomes important. So it is a tool to achieve that, and that is one reason I will say that I mean our funds have done well last एक साल में, एक साल, 2 साल, 3 साल, आप जो भी टाइम फ्रेम लोगे. I mean that is one reason that we've tried to pick across and not getting ki khali, but we will be so true to label is like earning growth. So that's why we don't have large banks in mid cap, we have high earning growth, this thing. So my thing is we should always construct the optimum portfolio across, keeping that 65 mid in mind in mid cap and 65 small cap in mind in small cap fund. वंडरफुल। सो ये आतिश, ये बताइए कि स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस में हमें कब पता चलता है कि ये स्पेस ओवरहीट हो रही है? मतलब व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट वी लुक एट टू अंडरस्टैंड कि ये अब बहुत ज़्यादा पीक पे हो चुका है? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड वो रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? Namrata, the typical signs when you talk, when you see everyone talking about small cap, mid cap, that is a usual sign. Panwala and everyone, those things अच्छा, are known. ओके। One is that. हाँ। Secondly, I think if you look at small mid cap, suppose small and mid cap 50% ऊपर है, but earning growth 15% ही है. So that there's been a lot of re-rating in that price movement. So you have to always see कि अगर कोई स्मॉल कैप इतना चला है इस टाइम फ्रेम में, हाउ मच ऑफ दैट रिटर्न हैज़ कम अर्निंग्स के थ्रू एंड हाउ मच ऑफ दैट रिटर्न हैज़ कम थ्रू पी री रेटिंग एक्चुअली. बिकॉज लॉन्गर टर्म में
a stock will give similar return like a earning compounding. That's why you should always see, and ये आपको दिख जाता है पी मल्टीपल में भी. कोई अगर कंपनी सपोज 20 टाइम था 5 साल पहले, अगर आज 50 टाइम हो गया है, you know that stock has become expensive. And in case earning growth has been very less, earning growth has been 12% and stock price CAGR has been 25%, so आपका valuation महंगा हो जाता है. So that I think valuation is the biggest thing which tells you कि there is overrated in the small and mid cap, or there is, I mean that is, things are still fine. That's why 2020 से 2024 के टाइम फ्रेम में हमने देखा स्मॉल एंड मिड कैप, सबको स्मॉल एंड मिड कैप चाहिए था, बट लास्ट 15 मंथ पीपल हैव बीन डिसअपॉइंटेड. एंड आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल अभी निकल जाएंगे, वो देखेंगे अरे मैंने क्या सोच के घुसा था मार्केट में और क्या हो गया. बिकॉज अगेन स्मॉल एंड मिड कैप में साइकिल्स थोड़े लॉन्ग होते हैं. आप 2018 में देखोगे, आई मीन मार्केट स्मॉल कैप आई थिंक क्रैक बाई 50-60%. सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक अ लॉन्गर साइकिल. आपको 5-6-7 साल का साइकिल लेके सोचना पड़ेगा दैट आपको 13-14% रिटर्न कैगर मिलेगा. बट कब मिलेगा, ईयर 1 में मिलेगा, ईयर 2 में मिलेगा, आपको नहीं पता. बट एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग ग्रोथ इक्वल टू स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग, दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड बाय हार्ट एक्चुअली. Wonderful. Okay. So, now coming to a very specific investor related question. मेरे पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टर मिड और स्मॉल कैप्स को कितना एलोकेशन देना चाहिए? मतलब अगर मैं देख रही हूँ कि लार्ज कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, फ्लेक्सी कैप्स हो गए, मल्टी कैप्स हो गए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हो गए, इतने सारे फंड्स आइडियली एक इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए. तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप्स कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या सैटेलाइट पोर्टफोलियो का, एंड कितना परसेंटेज? Look again, Namrata, I mean, allocation is a very individual call. Your risk appetite will be different than my risk appetite. Your father's risk appetite will be different than my father's risk appetite. So it is a very, very, you cannot generalize actually. So आपका पहले तो आपको देखना है कि आपका risk appetite कितना क्या है. What is your age? How many years of, I mean, you'll do working, and when you go into retirement, आपको कब पैसा चाहिए? 5 साल बाद बड़ा पैसा चाहिए, 10 साल के बाद बड़ा पैसा चाहिए. वॉट इज़ योर टेम्परामेंट? अगर मार्केट पर 25% गिरेगा तो आप कैसे बिहेव करोगे? विल यू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट और विल यू पुट न्यू इन्वेस्टमेंट? अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑन दैट बेसिस आपको एक एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा कि हम इक्विटी में इतना पैसा डालेंगे. देन विद इन इक्विटी, एज आई सेड, ये सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. स्मॉल और मिड कैप में कितना डालते हो, लार्ज कैप में कितना डालते हो. सो यू नीड अ बैलेंस. सो अगर यू आर इन अ प्रिजर्वेशन मोड, आपको बहुत रिटर्न नहीं चाहिए, योर ऑब्जेक्टिव इज़, अगर एफडी में 6-7% बन रहा है, तो अगर मुझे 9-10% बनता है, मैं हैप्पी विद दैट. मे बी लार्ज कैप इज़ द वे टू गो विद दैट. बट इन केस यू थिंक 10% रिटर्न विल नॉट मीट आपको जितना कॉर्पस चाहिए 10 साल 15 साल बाद, देन मे बी गो इनटू स्मॉल एंड मिड कैप. जैसा मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिया है लास्ट 10 साल में, द डिफरेंस इन रिटर्न आगे का किसी को नहीं पता है, बट इंट्यूटिवली स्मॉल एंड मिड कैप शुड गिव स्लाइटली हायर 2-3-4 परसेंटेज पॉइंट्स मोर देन लार्ज कैप. सो अकॉर्डिंगली आपको एक एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा कि 20 में लार्ज कैप में डालता हूँ, मिड कैप में 30 डालता हूँ, 10 स्मॉल में डालता हूँ. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंडिविजुअल कॉल as how much risk you have to take. And again, small and mid cap में cycles are long. I mean, maybe COVID किसको पता था? I mean, we saw the COVID 30-40-50% का करेक्शन हुआ. So that's why small and mid cap में वही पैसा डालना चाहिए लोगों को जहाँ पे they know that 5-6-7 साल उनको टच नहीं करना पड़े. In case they have a big spend maybe 2-3-4 years down the line, they should not put money into small cap, because even though companies are stable, safe, but stock price cycle could be much more longer in a small and mid cap. So it's a very very I will say a very personal, individual to individual. That's why there are a lot of advisors, I think. And here what is happening is, I think there are a lot of, because of Gen Z and all, there are a lot of do it yourself investor वो, I mean, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, दे वांट टू पुट मनी इनटू दैट फंड, बट लेटर दे रियलाइज, आई मीन, वो एक फंड नहीं अच्छा कर रहा है. सो आई थिंक फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स they should take hand holding of some advisor, and maybe as and when they learn the tricks in 3 year, 4 year, 5 year, they should move into direct investing from that view. So that has been my view, but it's not a generic answer I can give you, Namrata. Okay.
नो प्रॉब्लम। आपने बोला कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये आगे जाके कैसा करने वाले हैं, बट मेरा अगला सवाल वही था कि आपका क्या आउटलुक है फॉर मिड एंड स्मॉल कैप्स इन द नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स? आपको क्या लगता है अगले 3 या 5 साल में ये कैटेगरीज़ कैसा करने वाली हैं? लुक अगेन नम्रता, इट्स नॉट अबाउट कैटेगरी, बिकॉज कोई भी कैटेगरी आप लो, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी. ओके, इकोनॉमी जैसा करेगी देन इट विल डिपेंड, देन अदर कैटेगरीज विल डू वेल. सो अगर हम इकोनॉमी लेते हैं और मार्केट लेते हैं, वी नो दैट 2020 से 2024 things were going everything right on the economic front and या stock price were also doing very well. but last 15 महीना में हमने कुछ स्लो डाउन देखा है इकोनॉमी में, एंड रिजल्टेंटली हमने स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन देखा है. जी, बट गोइंग अहेड वी ऑल नो कि लास्ट 2-3 क्वार्टर में गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि थोड़ा ग्रोथ को रिवाइव करते हैं यहाँ से. हुँ, सो दैट्स वाई माई व्यू इज़ दैट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर यू विल सी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इकनॉमी में. ओके, अब सितंबर लोगे, सितंबर में बेस इफेक्ट लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा बेटर दिखेगा, बिकॉज सितंबर 25 में स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था, लास्ट ईयर 24 में स्टार्ट हो गया था. सो सितंबर आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, दिसंबर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा. माई व्यू इज़ नेक्स्ट 6 months to 9 months you will see improvement, and that's why I'm positive on the market from a next 1 year point of view also and longer term. but यहाँ पे अगेन नम्रता क्या होता है ना, मार्केट में आप बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट 1 साल में क्या बनाओगे. जी, बट आप अगर 3 साल 5 साल बोलोगे ना, इट बिकम्स मच मोर ईजियर एक्चुअली. हुँ, सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू एक्सपेक्ट 13-14% रिटर्न, 13% काइंड ऑफ रिटर्न अगर आप 3 साल 5 साल का विंडो लेते हो. अगला मे बी अगले 6 महीने नहीं रिटर्न दे, बट देन व्हेन रिटर्न्स कम इट विल मेक अप फॉर द टाइम पीरियड जहाँ पे उन्होंने रिटर्न नहीं दिया है. सो स्टिल आई फील दैट इक्विटी इज़ द बेस्ट एसेट क्लास. You will get, I mean 13-14% is not bad from a longer term point of view, because आजकल लोग 13-14% सुन के थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जनरली. sure. Yeah, I agree with you. So, Aditya, just one last question. We are towards the fag end of this podcast, and आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में 2 इक्विटी फंड कैटेगरीज ही डालनी होती, बस, तो वो 2 कैटेगरीज कौन सी होती? Look again, Namrata, risk appetite will differ people to people. I'm asking One, from your because I'm a, perspective. I'm asking from yeah, your from perspective. from from my perspective, one, as I told you, small and mid cap are very exciting categories. जैसा मैंने आपको बोला स्टार्ट में, there are so many sectors, emerging sectors which are not represented in other large categories, in large cap and other categories. So why should I mean I will go with a mid cap and a small cap fund actually, because mid cap कैटेगरी में आपको 65% मिड कैप मिलता है और स्मॉल कैप में 65% स्मॉल कैप मिलता है. तो एक दोनों प्योर प्ले, बिकॉज आप देखोगे ना बहुत सारे फ्लेक्सी कैप देखोगे, इवन लार्ज एंड मिड कैप आई मैनेज, वहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्ट है कि फंड मैनेजर कितना स्मॉल लेने वाला है, कितना मिड लेने वाला है, कितना लार्ज लेने वाला है, जी, और वहाँ पे भी बहुत सारे ओवरलैप रहते हैं. सो दैट्स वाई आई थिंक 2 कैटेगरीज in my view must have in the portfolio is small cap and mid cap. And maybe 10 years back people used to think ये this should be core rather than the satellite of one's portfolio. Allocation, as I said, कितना डालोगे will depend on the factors I said, but I think these two has to be a mainstay in everyone's portfolio. In case again a caveat, आपको 5 साल का व्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा. You cannot come in here and say next 1 year अरे रिटर्न नहीं बना, because which has been a case in lot of fund last 1 year. But you take a longer term call, and small and mid cap has to be their core part of your portfolio. okay. Thank you so much, Aditya ji. I think it was a wonderful conversation. We were talking for the first time on this show, so thank you so much for joining us. And I do believe कि बहुत सारे जो आपके जवाब थे वो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी अबाउट मिड एंड स्मॉल कैप फंड. So thank you so much for your time. And I do hope we can get you back again soon, maybe with a different theme. But thank you so much for now. Sure. Thank you so much, Namrata, for having me on the show.
टेक केयर, थैंक्स। वाह, दैट वाज सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद मिस्टर आदित्य। आई एम श्योर आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो आज जो है हमने बहुत सारे सवाल मिस्टर आदित्य से अराउंड मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के बारे में पूछे। तो सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए। सो मिस्टर आदित्य सेज कि सबसे पहले तो बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमें इवेंचुअली मार्केट जैसे रिटर्न्स ही मिलेंगे। सो व्हाट ही सेज कि सबसे पहले आप अपना असेट एलोकेशन डिसाइड करिए और उसके बेसिस पे अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट करिए। ही सेज आइडियली एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 8 से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप कोई भी 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं और एंड इन ईच ऑफ दोज कैटेगरीज आप 2-2 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर आदित्य के साथ रिस्क के बारे में डिस्कस किया इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। एंड मिस्टर आदित्य सेज कि जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो कंपनीज होती हैं जो जिनका रैंक 101 से लेके 250 तक होता है, विच इज 150 मिड कैप कंपनीज, और जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो 251 एंड बिलो। अब अगर हम देखें तो ये कंपनीज भी ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा होता है, तो लॉजिकली इन कंपनीज में उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है जितना इन्वेस्टर को लगता है। फिर हमने मिस्टर आदित्य के साथ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा कि एक इन्वेस्टर को स्मॉल या मिड कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मिस्टर आदित्य सेज कि स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जो आपको लार्ज कैप में नहीं मिलेंगे और सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में ही मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो हॉस्पिटल स्पेस है उसमें से बहुत सारी कंपनीज आपको मिड और स्मॉल कैप में मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर CDMO, ये सब आपको मिड और स्मॉल कैप्स में मिलेंगे। देन ही आल्सो सेज कि जो AMCs होते हैं वो भी मिड कैप कंपनीज होती हैं, या फिर एक्सचेंजेस आल्सो मिड कैप कंपनीज। ऑटो एंसिलरीज जो है वो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग इमर्जिंग सेक्टर्स हैं मिड और स्मॉल कैप्स में, जिसका एलोकेशन आपको लार्ज कैप में शायद उतना नहीं मिलेगा। ही आल्सो स्पेसिफाइज कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो उसमें जो है लार्ज कैप्स आर बेटर। तो अगर आपको बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है देन यू शुड लुक फॉर लार्ज कैप बैंकिंग कंपनी। सो ही सेज कि जनरली मिड और स्मॉल कैप्स में लार्ज कैप के कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा होता है, और इसीलिए जब आप मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और ज्यादा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फिर हमने मिस्टर आदित्य के साथ मल्टी बैगर्स के बारे में डिस्कस किया कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो मिस्टर आदित्य सेज कि मल्टी बैगर्स ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको 5x 6x रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन जब हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें नहीं पता रहता है कि वो आगे जाके मल्टी बैगर बनेगी। ही सेज कि लॉजिकली देखा जाए तो अगर आपको 15% CAGR भी मिल रहा है विद कंपाउंडिंग ओवर द लॉन्ग टर्म, वो भी आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो ही सेज कि आपको 15% या 20% CAGR वाली कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म विद कंपाउंडिंग आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फिर हमने मिस्टर आदित्य के साथ ये डिस्कस किया कि अगर हमने एक मिड और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है जो पैसिवली मैनेज्ड है वर्सेस एक एक्टिवली मैनेज मिड और स्मॉल कैप फंड में, व्हाट इज द डिफरेंस, और क्या हम आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज मिड और स्मॉल कैप फंड। सो मिस्टर आदित्य सेज कि जो प्रमोटर्स होते हैं आजकल मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के, वो भी मार्केट कैप देख रहे हैं, और आज के टाइम में जो है एक्टिवली मैनेज मिड और स्मॉल कैप फंड्स को काफ़ी मुश्किल होता है इंडेक्स को या बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर्स के पास कोई एक्स्ट्रा एज है या फिर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों के पास नहीं है कंपेयर टू 5 years बैक। तो ही सेज कि आज के टाइम में आप एवरेजिंग देखेंगे, आप एलोकेशन देखेंगे एक्सेट्रा टू बेसिकली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। फिर हमने मिस्टर आदित्य से ये डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना प्रोपोर्शन मिड और स्मॉल कैप्स में होना चाहिए। सो मिस्टर आदित्य सेज कि एक बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कैसा है और उस इन्वेस्टर को पैसे की कब जरूरत है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तब आपको लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आपका बहुत ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए फ्रॉम योर पोर्टफोलियो तब आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास थोड़ा स्पेयर कैश होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफी लॉन्ग टर्म होना चाहिए टू इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। ही आल्सो सेज कि इन द लॉन्ग टर्म आप मिड और स्मॉल कैप फंड से 13 से 14% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर आदित्य से पूछा है कि एक इन्वेस्टर को मिड और स्मॉल कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो उनके पोर्टफोलियो के लिए क्यों जरूरी होते हैं। मिस्टर आदित्य सेज कि मिड और स्मॉल कैप्स में जो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं, जो इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, वो आपको लार्ज कैप्स में नहीं मिलेंगे।
मिलेंगी। तो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में थोड़ा मिड और स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए। ही सेज ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिड और स्मॉल कैप में डालना है। लेकिन आइडियली एज मेंशन्ड अर्लियर आपको लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, और तब आप जो है मिड और स्मॉल कैप फंड्स को अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई होप यू हैड अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। Thank you so much for watching. Please like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.